Bismillahirrahmanirrahim. I am Sardar Shaukat Hayat, subject specialist in Pakistan Studies in DPS and Inter-College, Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes in DPS and Inter-College, Sahiwal. Let's start our today's lesson. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہم آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. مطالعہ پاکستان نہم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار. باب نمبر 2 صفحہ نمبر 34 اور 35 آپ کھول کر بیٹھیں گے. ہمارے آج کے اس ٹاپک کے تدریسی مقاصد ہیں: طلباء مطالعہ پاکستان کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے اور قائد اعظم کی خدمات کا احاطہ کر سکیں گے. تخلیق پاکستان اور نظریہ پاکستان اور تحفظ پاکستان کی قدر و قیمت جان سکیں گے. عزیز طلباء، کون جانتا تھا کہ 1876 کو پونجا جنا کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام محمد علی رکھا گیا ہے آگے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دے گا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک رہبر بن کر سامنے آئے گا اور ایک آزاد وطن حاصل کرے گا. قائد اعظم کی شخصیت سے کون متعارف نہیں ہے؟ ان کی خدمات، ان کے نام کا شہرہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. وہ ہستی جو 1876 کو 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے اندر پیدا ہوئی، آگے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر بننے کے لیے سامنے آئی. وہ قائد اعظم جو 1876 کو صرف محمد علی کے نام سے اس دنیا کے اندر سامنے آئے، آگے چل کر 1938 کے اندر ان کو قائد اعظم کا ٹائٹل دیا گیا. قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے والد کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر لندن کی طرف جاری رکھا. لندن جانے کے بعد لنکن ان میں داخلہ لیا. وہاں سے بار ایٹ لا میں داخلہ لے کر آپ بیرسٹر بن کر واپس آئے تو آپ کے والد کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا. آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا، ان کی بگڑتی ہوئی جو انڈسٹری تھی اس کے جو معاملات تھے اس کو سنبھالا. پھر اور بمبئی میں اپنی پریکٹس شروع کر دی. بمبئی میں پریکٹس شروع کرنے کے بعد آپ نے ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے آپ نے کانگریس جوائن کی. آپ جب یہ جان چکے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو جوائن کیا جائے. 1913 کے اندر آپ نے مسلم لیگی لیڈروں بالخصوص مولانا محمد علی جوہر کی سفارش پر اور ان کے کہنے پر آپ نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی اور یوں آپ مسلم لیگ کے ممبر بھی بنے. اس وقت آپ مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے اور کانگریس کے ممبر بھی تھے اور اسی بنیاد پر آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ، قائد اعظم کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد آپ مسلم لیگ کے لیے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلم لیگ کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں کے اندر بٹ گئی اور آپ یہاں کی سیاسی صورتحال سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے. انگلستان جا کر وہاں کی پریوی کونسل میں آپ نے اپنی پریکٹس شروع کر لی. وہاں آپ نے اپنا گھر بنایا. حالات بدلتے چلے گئے. 1929 کے بعد 1930-31 کی گول بیس کانفرنسوں کے اندر آپ نے شرکت کی اور اس کے بعد آپ دوبارہ وطن واپس آئے. بطور خاص اس وقت کے مسلم لیگی لیڈران جن میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا نام بطور خاص شامل ہے، ان کی دعوت پر آپ واپس آئے اور دوبارہ مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی. تو اس وقت 1934 کا سال تھا. مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد آپ نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی
اور تنظیمیں نو کرنے کے بعد پورے ملک کے لاہور سے لے کر کراچی تک، دلی سے لے کر بمبئی تک اور ڈھاکہ سے لے کر راج کماری تک تمام برِ صغیر کے آپ نے دورے کیے اور مسلم لیگ کو مضبوط بنایا۔ 1935 کے آئین کے تحت 1937 کے اندر جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں مسلم لیگ نے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کی۔ 1937 میں جب قائد اعظم کو قائد اعظم کا ٹائٹل ملا یا خطاب ملا تو انہوں نے اسی خطاب کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایک اور خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ خطاب یہ تھا کہ دو طرح سے آپ کو پکارا گیا تھا۔ جب آپ کو پٹنہ اجلاس میں صدارت کے لیے بلایا گیا تو یہ الفاظ بولے گئے تھے کہ اب ہم دعوت دیتے ہیں شہنشاہ ہندوستان قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ تو قائد اعظم جب سٹیج پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو شہنشاہ نہیں سمجھتا، جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے یہ ٹائٹل میں قبول کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کا ادنا سپاہی سمجھتا ہوں۔ دیکھیے کہ قدرت نے، عوام نے کتنے بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا اور آپ اس وقت بھی اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کا ادنا سپاہی گردانتے تھے، کہا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے متعلق جتنا کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ 1940 کی قرارداد کے اندر جب قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، اسی کو آگے لے کر 1945 اور 46 کے انتخابات جب ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نے واضح اور نمایاں برتری حاصل کی۔ قومی اسمبلی کی 30 نشستیں حاصل کر لیں۔ اس وقت قومی اسمبلی کی مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر 30 نشستیں تھیں اور 30 کی 30 حاصل کی، اور صوبائی اسمبلی کی 428 نشستیں حاصل کر کے 90% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور کامیابی حاصل کی۔ یوں صوبائی بنیادوں پر بھی مسلم لیگ بلا شرکت غیرے سب سے آگے تھی اور قومی اسمبلی کی 100% نشستیں حاصل کر کے تمام دیگر مسلمان سیاسی پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ یہ وہ طوطی تھا جو سر چڑھ کر بولتا تھا قائد اعظم تنہا ہندوستان کے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھال چکے تھے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا انتخابات کے دوران کہ اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کو ووٹ دیں، اگر آپ پاکستان نہیں چاہتے تو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیے جائیں۔ تو یہ ووٹ کی طاقت تھی جس میں پاکستان کے قیام کو عملی شکل دی۔ اگر اس وقت کا مسلمان پاکستان کو ووٹ نہ دیتا یا قائد اعظم کے کہنے پر ووٹ نہ دیتا تو یاد رکھیے پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ یہ اس وقت کے مسلمان کی ووٹ کی طاقت تھی کہ پاکستان بنا۔ یاد رکھیں یہ بات بہت کم طالب علم، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1945 اور 46 کے انتخابات پاکستان کی بنیاد پر جیتے گئے تھے کہ اگر آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر 22 مسلمان سیاسی جماعتیں تھیں جو کہ انتخابات لڑ رہی تھیں۔ تو قائد اعظم نے ایک چمکھی جنگ لڑی، ایک طرف انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، دوسری طرف کانگریس کے خلاف جنگ لڑی، تیسری طرف اپنی سیاسی پارٹیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ تو گویا 22 مسلمان دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھیں جو کہ قائد اعظم کے مد مقابل تھیں۔ ان 22 سیاسی جماعتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے مسلم لیگ تنہا ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے سامنے آ چکی تھی۔ انتخابات نے نتائج واضح کر دیے تھے، اب پاکستان بننے کو کوئی روک نہ سکتا تھا۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ لارڈ ویول عملاً ویول پلان کے ذریعے سے ناکام ہو چکے تھے۔ کیبنٹ مشن پلان کے تحت کانگریس پاکستان دینے پر آمادہ نہیں تھی۔ لارڈ ویول واپس چلے گئے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے، ان کو خصوصی طور پر یہ پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ پاکستان ہرگز نہ بننے دیا جائے۔
लॉर्ड माउंट बैटन ने यहाँ आकर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। कांग्रेस पाकिस्तान नहीं बनाना चाहती थी, कायद आज़म पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए थे, मामलात बिल्कुल बिगड़ चुके थे। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बनाना पड़ गया और कांग्रेस को पाकिस्तान देना पड़ गया। जब कांग्रेस को पाकिस्तान देना पड़ गया तो कैबिनेट मिशन प्लान की बुनियाद पर पूरे के पूरे सूबे नहीं दिए गए, बल्कि पंजाब और बंगाल को काटकर आधे आधे सूबे कर दिए गए। आधा पंजाब हिंदुस्तान के पास चला गया और आधा बंगाल हिंदुस्तान के पास चला गया, जहाँ के हिंदुओं की अक्सरियत थी। अगर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत पाकिस्तान मिलता तो आज हमारे लिए मसला कश्मीर ना होता और कश्मीर हमारे लिए पके हुए फल की तरह हमारी झोली में आ गिरता, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदें दिल्ली तक होती और दिल्ली पाकिस्तान में शामिल होता या दिल्ली के करीब तक का इलाका पाकिस्तान के अंदर शामिल होता। ये हिंदू की चाल थी कि उसने इलाकाई बुनियादों पर सूबों को तकसीम किया और यूँ हमें पूरा पाकिस्तान हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। और ये कायद आज़म की फरासत थी कि उन्होंने ऐन वक़्त पर उस कटे फटे पाकिस्तान को कबूल कर लिया, क्योंकि कायद आज़म को धमकी दी गई थी कि अगर आप इस आखिरी मसवदे को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम हिंदुस्तान को तनहा छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेज़ वापस जाने का फ़ैसला कर चुके थे और यूँ मामलात हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान रह जाएंगे और हिंदू कभी भी मुसलमानों को पाकिस्तान ना देंगे और यूँ पाकिस्तान का क़याम हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाता। ये तो बेटा वो बहुत मुख्तसर सी बात थी कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ बेशतर मुश्किलात थी वहाँ ये मुश्किलात भी थी। एक और बात भी पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको जो है वो बताना चाहूँ कि कायद आज़म को ज़ाती तौर पर लालच दिया गया कि हम आपको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना देते हैं, आपको मुस्तकिल वज़ीर आज़म बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर आपको ओहदे की गर्ज होती, अगर आपको माल दौलत की गर्ज होती, अगर आपको शोहरत की गर्ज होती तो आप इस ओहदे को कबूल कर लेते। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कौम से वादा किया है, मुझे सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। मामलात इस हद तक आ गए कि माउंट बैटन को पाकिस्तान देना पड़ा। तकसीम हो गई, रेड क्लिफ एवार्ड के तहत तकसीम हुई। मौजूदा पाकिस्तान जो हमको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान हमें इब्तदाई शक्ल में नज़र आया। पाकिस्तान बनाने के बाद कायद आज़म 13 माह ज़िंदा रहे। इस 13 माह के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इसी शक्ल में था। पाकिस्तान किस शक्ल में मौजूद था? पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे थे, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान। कश्मीर में लड़ाई हो रही थी, कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे थे। कायद आज़म कश्मीरी मुजाहिदीन की माली व अखलाकी हमायत कर रहे थे। इस दौरान मुहाजिरीन का सैलाब भी आ चुका था। कायद आज़म को बेपनाह मसाइल का सामना था। तो इन हालात में कायद आज़म ने अपना मुल्क हासिल किया। इसके बावजूद कायद आज़म ने 13 रियासतों का, जो छोटी रियासतें थीं उनमें से कुछ बड़ी रियासतें भी थीं, जैसे रियासत बहावलपुर जो आजकल बहावलपुर डिवीज़न कहलाता है, ये रियासतें पाकिस्तान के अंदर शामिल हुई। याद रखें कि सबसे पहली रियासत जो पाकिस्तान के अंदर शामिल हुई वो रियासत बहावलपुर थी। ये एक बड़ी रियासत थी। तो आइए चलते हैं हमारे अपने टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ। पहली हेडिंग है तारफ़, जो कि मुकम्मल हो चुकी है। तारफ़ के बाद हमारी दूसरी हेडिंग है बतौर गवर्नर जनरल हलफ बर्दारी। कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को अपना हलफ लिया और कायद आज़म ने ये हलफ 14 अगस्त 1947 को कराची में लिया और लॉर्ड माउंट बैटन से बतौर गवर्नर जनरल अपने इख्तियारात हासिल किए और इसी दौरान आपने लियाकत अली ख़ान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द किया। पाकिस्तान नया नया बना था और इसके लिए कोई कानून भी मौजूद ना था, तो इंडिया एक्ट 1935 में मुनासिब तरमीम करके एक अबूरी आइन इंडिया एक्ट 1935 नाफज किया गया और पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए
काम शुरू कर दिया गया। बहुत सारा काम था, बहुत सारे मसाइल थे, तो ये वो मसाइल थे जो कायद आज़म ने हल किए। अबूरी आइन बन जाने के बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मुश्किलात सुलझाना। नौज़ादा मुमलकत के मामलात को सुलझाने के लिए कायद आज़म को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलात में माली मुश्किलात, दीगर मुश्किलात और बहुत सारी मुश्किलात शामिल थी। पॉइंट नंबर 4 आता है असासाजात की गैर मुसावी तकसीम। असासाजात क्या होते हैं? स्टेट बैंक के अंदर इंडियन रुपया कमोबेश 2 अरब रुपये मौजूद था। इसमें कमोबेश हमारे 70 से 75 करोड़ रुपए बनते थे और इंडिया इस 70-75 करोड़ रुपए में हमें एक पाई भी नहीं देना चाहता था। इसको डिले किया गया और ये कहा गया कि ये पैसे ले लो और कश्मीर के मामले पर सौदेबाजी कर लो। अगर आप पैसे लेते हैं तो फिर कश्मीर के मामले पर सौदेबाजी आपको करना होगी, तो हम आपको पैसे दे देते हैं। तो ये वो मामलात थे कि असासाजात की गैर मुसावी तकसीम की एक आपको मामूली सी मिसाल देता हूँ। महाजरीन की आबादकारी, यहाँ से हमारे मौजूदा पंजाब से कम बेश 50 लाख हिंदू और सिख महाजरीन यहाँ से निकल गए और इंडियन पंजाब में मुंतकिल हो गए। वहाँ से 60 लाख महाजरीन जो मुसलमान महाजरीन थे, लुटे पुटे थे, उनको कत्ल किया गया, बच्चों को अगवा किया गया। कुछ इस किस्म की बातें भी हैं जो यहाँ सुनाई नहीं जा सकती कि हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। माँओं ने अपने बच्चे फेंक दिए, अपने बेटे छोड़ दिए। ट्रेनों की जो ट्रेनें आती थीं उनको लहू लहान कर दिया गया, खंजरों से, कृपानों से, गोलियों से ख़त्म कर दिया गया। ट्रेनों को रोका जाता, उसके अंदर मुसलमान मर्दों और औरतों को चुन चुन कर कत्ल कर लिया जाता। हमारी बहू बेटियों को ट्रेनों के अंदर से उनके वालिदैन के सामने उठा कर ले जाया जाता और मुसलमान मासवाए अल्लाह के सिवा फरियाद किसी से न कर सकते थे। नेक्स्ट आता है इंतज़ामी रिकॉर्ड। यहाँ हमारे मौजूदा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इंतज़ामिया थी, इस इंतज़ामिया के अंदर बेशतर अफसरान हिंदू थे जो जाते हुए अपना इंतज़ामी रिकॉर्ड या तो अपने साथ ले गए थे या तबाह कर गए थे। टाइपराइटर से उस वक़्त काम होता था। टाइपराइटरों को आग लगा गए थे, उनको ख़राब कर गए थे ताकि वो काम ना कर सकें। ये वो मसाइल थे कि मुसलमानों को सफ़ों के ऊपर बैठकर काम करना होता था। इवन दैन के जो कॉमन पेन है, इसकी बजाय जो दरख्तों के ऊपर लगे कांटे होते हैं, जैसे कीकर के कांटे, उससे अपनी फाइलों को पिन अप किया जाता था और बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती थी। ठीक, बिजली का इंतज़ाम मौजूद ना था। सोफ़े के अंदर बैठकर रजिस्टरों पर काम किया जाता था। ये एक मिसालें हैं। अगर तफसील में जाएं तो मासवाए अफसोसनाक ख़बरों के अलावा और कुछ नहीं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी की तलकीन। यहाँ जो मुसलमान मुलाजमीन रह गए थे, जो यहाँ काम करना चाहते थे, आपने उनको दयानतदारी से काम करने की तलकीन की। नौज़ादा मुमलकत के क़याम के लिए, इसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए कायद आज़म ने सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी से काम करने की तलकीन की और उनको अवाम का खादम बनाया। उनको ये समझाया कि आप खादम बनकर काम करें, आप अफसर बनकर काम ना करें, और उन्होंने वाक़ईतन ऐसा ही किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हवाई कंपनी से मुआहदा। हमारे बेशतर अहलकार जो आला अफसरान थे और आला ओहदों पर फाइज थे और इंडिया के अंदर मौजूद थे, उनको बज़रिया ट्रेन लाने के लिए यहाँ कई मसाइल थे। रास्ते में उनके कत्ल होने का डर था, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी टाटा एयरलाइन से मुआहदा किया गया और उसके ज़रिए से उनको बज़रिया हवाई सफ़र से पाकिस्तान लाया गया ताकि वो पढ़े लिखे और तजर्बाकार जो अफसरान हैं उनसे पाकिस्तान के महकमों का काम चलाया जा सके। और टाटा एयरलाइन जो कि एक प्राइवेट एयरलाइन थी, उसने वहाँ इंडिया से
आला अफसरान को हमारे यहाँ कराची, लाहौर और कोयटा मुंतकिल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, सिविल सर्विसेज का इजरा। पाकिस्तान के अंदर कोई ढांचा ना था, तमाम तर रिकॉर्ड हिंदू अपने साथ ले जा चुके थे। सिविल सर्विसेज होती क्या है? जितने भी मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाह, उनकी तनख्वाहों का, उनकी छुट्टियों का, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का, उनकी रिटायरमेंट का, ये सब हिसाब किताब एक स्पेशल डिपार्टमेंट में रखा जाता है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहलाता है। इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद किसी भी अफसर को या किसी भी मुलाजम को बाद एज रिटायरमेंट उसकी पेंशन मिलती है, दीगर मामलात ये एक अलग डिपार्टमेंट के जमा होते हैं जिनको सिविल सर्विसेज कहते हैं। सिविल सर्विसेज में आला सर्विसेज भी आती हैं जो कि ग्रेड 17, 18, 19 की आती हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। और सिविल सर्विसेज एकेडमी बनाई गई ताकि आला अफसरान और आम मुलाजमीन के रिकॉर्ड और उनके काम के सिलसिले को जो है वो जारी रखा जाए और उनके हिसाब किताब को आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह से ये सिविल सर्विसेज का इजरा किया गया हमारा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी। आपने चौधरी मोहम्मद अली की सरबराही में इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए काम किया। पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा था उसको ऑर्गेनाइज करने में चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत अहम काम किया। ये वही चौधरी मोहम्मद अली हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ये उस वक़्त एक बड़े आला पाई के ब्यूरोक्रेट थे। आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 9 है अकाउंट व फॉरेन सर्विसेज। अकाउंट्स के मतलब आपको जो है ये बता चुका हूँ पहले ही, सिविल सर्विसेज वाले जो है ये टॉपिक में अकाउंट्स हिसाब किताब और तनख्वाहों के बारे में जो है ये रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉरेन सर्विसेज हमारा जो वजारत ख़ारजा का अमला होता है ये हमारी फॉरेन सर्विसेज जो है ये कहलाती है। हमारे जितने भी मुशीर हैं, जितने भी हमारे सफ़ीर हैं, ये जो बैरून ममालिक में काम करते हैं ये हमारी फॉरेन सर्विसेज के तहत आते हैं। इसका इजरा भी उन्हीं के दौर में किया गया और शोबा ख़ारजा तल्लकात आमा बनाया गया और ख़ारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया। पॉइंट नंबर 10 आगे आता है बर्री व बहरी अफवाज के हेडक्वार्टर। अजीज़ तलबा, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास अपनी कोई फ़ौज नहीं थी। कुछ फ़ौजी थे जो इंडियन फ़ौज में शामिल थे। उस वक़्त के आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो मुसलमान फ़ौजी पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो जो फ़ौजी पाकिस्तान आए वो बर्री फ़ौज के मुलाजम थे या अफसरान थे, बहरी फ़ौज के थे या फ़ज़ाइया के थे, ये सब के सब पाकिस्तान आ गए और जो वहाँ रह गए वो वहाँ रह गए। तो बर्री फ़ौज का हमारे पास और बहरी फ़ौज का और फ़ज़ाइया का कोई ढांचा ना था। उस वक़्त इंडिया के पास कमोबेश 150 टैंक थे और पाकिस्तान को मालूम है कि कितने टैंक दिए गए। पाकिस्तान को एक भी टैंक नहीं दिया गया। बर्री फ़ौज के जो सिपाही थे उनके लिए असलहा कितना था, लाखों टन गोला बारूद था, कोई गोला बारूद नहीं दिया गया। सिर्फ फ़ौजियों को वर्दियाँ दी गई, बूट दिए गए, बैज दिए गए और बस। तमाम तर हेडक्वार्टर्स अफवाज के या तो दिल्ली में थे, बम्बई में थे, कलकत्ता में थे। पाकिस्तान के पास अपने बर्री अफवाज, बहरी अफवाज और फ़ज़ाइया के कोई हेडक्वार्टर ना थे, यानी उनके कोई हेड ऑफिस ना थे। तो फौरी तौर पर यह सोचा गया कि कराची के अंदर उनके बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया यानी नेवी, एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करके उनके हेडक्वार्टर और आला अफसरान के हेडक्वार्टर्स बनाए जाए। पॉइंट नंबर 11 असला फैक्ट्री का क़याम। इसको हम डिस्कस करते हैं। असला फैक्ट्री के क़याम के हवाले से इंडिया के पास 16 असला फैक्ट्रियाँ थीं और ये सब की सब दिल्ली के आसपास के इलाकों में थी। दिल्ली का इलाका इंडिया के पास चला गया था, हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये पाकिस्तान के पास
आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत पाकिस्तान देने पर राजी न थी, बल्कि सूबों को काटा गया, पंजाब को काटा गया। स्पेशली हम देखते हैं कि लाहौर से उधर वाला हिस्सा जो हमें मिलना था, ये ज़बरदस्ती मनवाया गया हमसे कि पंजाब की तकसीम की जाए। हालांकि पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर जो दिल्ली तक का इलाका था, मुसलमानों की तादाद उस वक़्त की मरदमशुमारी के मुताबिक 53% थी और ये इलाका मुसलमानों के पास आना चाहिए था। लेकिन हिंदू और कांग्रेस और अंग्रेज़ की मक्कारी और अय्यारी ने काम दिखाया और लाहौर से दूसरी तरफ मशरक़ का इलाका काट कर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। बहरहाल कायदे आज़म ने बादले नाखास्ता इस तकसीम को कबूल कर लिया और हिंदुस्तान की 16 असला साज फैक्ट्रियों में हमें एक भी फैक्ट्री ना मिली, बल्कि कांग्रेस और कांग्रेसी लीडरों ने इन असला फैक्ट्रियों को देने से इनकार कर दिया। असला फैक्ट्री तो क्या, वो गोला बारूद भी जो है वो ना देना चाहती थी। कमोबेश लाखों टन, 4.5 लाख टन गोला बारूद असला फैक्ट्रियों के अंदर मौजूद था। उसमें हमारा हिस्सा 40 से 50 हज़ार टन बनता था। और जानते हैं कि हमें कितना हिस्सा मिला? 3 से 4 हज़ार टन। और उसमें क्या मिला? बंदूकें होती तो गोलियां ना होती। तो 16 असला साज फैक्ट्रियों में से हमें एक का भी हिस्सा ना मिल सका और बिलाखिर जब मामलात गुफ्तो शनीद पर आए तो पाकिस्तान को पैसे देने का फैसला हुआ और उसी पैसे से पाकिस्तान ने कमोबेश 1951 के अंदर अपनी असला साज फैक्ट्री लगाई और ये वाह असला साज फैक्ट्री है। वाह रावलपिंडी के करीब एक इलाका है, ठीक है। वाह से मुराद कोई वाह नहीं है, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री ज़ेरे ज़मीन है। याद रखें, वो पाकिस्तान जो 1947 में एक गोली भी ना बना सका था या गोली बनाने की सलाहियत भी ना थी, एक कारतूस बनाने की सलाहियत भी ना थी, वो आज एक गोली से लेकर एक टैंक तक, एक रॉकेट लॉन्चर से लेकर एक मिसाइल तक, हमारे गौरी गजनवी मिसाइल इन्हीं असला साज फैक्ट्री में बनते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खारजा पॉलिसी। और इस पॉइंट के मतलब बेटा मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान नया मुल्क था, इसको अपना ही नई खारजा पॉलिसी बनानी थी। तो कायदे आज़म ने अपनी हदायत के तहत अपनी इस खारजा पॉलिसी को जो इस्लामी ममालिक के साथ थी और दुनिया आलम के साथ थी, दोस्ती और बराबरी की बुनियाद पर तरतीब दिया कि हम तमाम अक़वाम आलम से अच्छे तल्लुकात रखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया था और उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए कमोबेश 2 साल का अरसा हो चुका था। याद रहे कि जब अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई तो इसके इब्तदाई ममालिक की तादाद 45 थी, जो बढ़ते बढ़ते 60, 70 और 80 तक पहुँच गई। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत सितंबर 1947 में मिली। ये भी कायदे आज़म की काविशों की मरहून मन्नत थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14 और लास्ट पॉइंट है पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947। कायदे आज़म तालीम की अहमियत से आगाह। वो कहा करते थे कि कोई कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जबकि वो तालीमी मैदान में आगे ना हो। याद रखें, जिन कौमों ने भी तालीम हासिल की है वो कौमें दुनिया में आगे हैं। यही मेरा सबक आपके लिए है। आप भी तालीम हासिल करें, मुल्क व कौम के लिए तरक्की का बायस बने, अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।